Hello everyone, I am Moinuddin and today I have come with another poem of your syllabus, that is The True Beauty. You can see at the board. The True Beauty is the second poem of your syllabus according to UP board. Okay. The True Beauty is one of the most famous lyric of Thomas Carey. The poet of this poem, Thomas Carey. This word is said as Carey. Okay. Thomas Carey was an English poet and was the first Cavalier songwriter of England. He was educated of the University of Oxford. He composed several poems such as Boldness in Love, Faddy Rose, Ask Me No More, Querelle Mistress, Lips and Ices, etc. And his poems were published after a few weeks when he died. Actually, he died in 1639 and he was born 1595 in England. So we can say Thomas Carey was an English poet. Correct? And now if we talk about the theme of this poem, means the true beauty, then we can say that sincerity and uprightness are the essential quality of true beauty. In other words, we can say the firmness of mind is the basic part of the true beauty. In this poem, the poet Thomas Carey says about, you can say he wants to tell us, he wants to describe about two kinds of beauty. First, inner beauty, and second, outer beauty. The poet says that inner beauty is must. The inner beauty is a true beauty. This poem teaches us that mostly a man likes a woman for her charming features such as coral lips, star-like eyes, rosy cheeks, but with the passage of time these qualities decay. It means we can say that steadfast mind, the beauty of steadfast mind, good thoughts, calm desire are essential for the true beauty. If a woman possesses these qualities, she possesses the true beauty. Because according to the poet, the true beauty can never die. Because you can say that soul and good thoughts never dies. Okay. If we talk about the rhyme scheme of this poem, then we can say that this poem is written in two stanzas of 6 lines, in which first 2 lines, he that loves a rosy cheeks or coral lips admires, have metaphor. Okay. And star-like eyes, you can see star-like eyes. In this line, the poet used beautifully a figures of speech that is known as simile. And fuel to maintain, here is, we can say that it is metaphor. Okay. And if you talk about rhyme scheme of the poem, so A, B, and C, C. This is rhyme scheme of this poem. You can see rhyme scheme: cheek A, admired B. Seek, cheek and seek, similar sound, both words. Okay. Then A,
B, decay. Cheek, A, like cheek, seek, and like admires, fires, like decay, way. Just like first stanza, we can say second stanza, but a smooth and steadfast mind combined, desire, fires, despise, eyes. Okay, so we can say, yeah, we can write A, B, A, B, C, C. A, B, and C, C. Okay, this is the rhyme scheme of this poem. And for your information, I want to tell you that whatever I said, just it can be written as a central idea of this poem. Okay, then let's start. You can see the first stanza of your poem. First stanza. He that loves a rosy cheeks or coral lips. Coral, what is the meaning of coral? A hard red, pink or white substance which is formed in the sea, in the bone of small sea animals. Okay, and if he admires praise, or forms star-like ices. In this line, we can say that the poet used the figure of speech simile. Fuel to maintain these fires, as old time makes these decay, so his flame must waste away. In other words, we can say by the help of these lines, the poet wants to tell us that we have to love spiritual beauty, not physical beauty. Because if we love physical beauty, then physical beauty passes with the time. Okay, and spiritual beauty never dies. Forever live. In the end of the poem, the poet tells that so his flame must waste away, as old time makes these decay. If you love physical beauty, then as soon as your lover becomes old, the beauty of your lover becomes less. In other words, we can say that we should not love physical beauty, we should love spiritual beauty, because physical beauty becomes less with the passage of time. Okay, and second stanza, if we talk about second stanza, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts, calm desire. Before starting this stanza, I told you that calm desire, good thoughts, and steadfast mind are the essential part of the true beauty, which is described in this stanza. Gentle thoughts, calm desire, and steadfast mind. Okay, heart with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. The poet tells that where these are not found, the poet favors in the spiritual beauty. He condemns the physical beauty. Okay, and he hates the type of cheeks, lips, and eyes. In other words, we can say that woman, if a woman has virtue, then it can be called beautiful. But if she has lack of virtue, then it can't be called a beautiful. Okay, only without virtue, a woman nothing but only show peace, because physical beauty decay with the passage of time.
At the board you can say that the first explanation of the first stanza here. ठीक है, तो अगर स्टार्ट करते हैं इस पोएम को हम, तो पहली जो पोएम है, उम्मीद है थोड़ा समझ जाइए आप लोग। देखिए जो एक्चुअली जो पोएम है ये 2 स्टैंजाज में इसको डिवाइड किया गया है। 6 लाइंस फर्स्ट स्टैंजा में है और 6 लाइन्स सेकेंड स्टैंजाज में भी दी गई हैं। तो भाई इसकी जो राइम स्कीम वो भी बता दी गई है आपको, ABCC है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही बता रहा है ना, 2-3 चीज़ों को उसने बताया कि एक स्टेडफास्ट माइंड, काम डिज़ायर एंड जेंटल थॉट्स, ये 3 जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक वास्तविक ब्यूटी सुंदरता के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बता भी दी गई हैं। तो इसमें राइटर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब ही दैट्स लव्स अ रोजी चीक्स, वो इंसान लिखा है जो लव्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रेम करता है। रोजी चीक्स का मतलब क्या होता है, गुलाब के जैसे गालों से, मतलब चेहरे की सुंदरता से अगर कोई प्रेम करता है उसके बारे में बता रहा है। और कोरल लिप्स मतलब एक मूंगा होता है, मूंगा हम ये कह सकते हैं समुद्र के किनारे भी मैंने बताया भी था कि कुछ जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे एक पदार्थ सब्सटेंस तैयार होता है जो गुलाबी कलर का होता है, वाइट भी होता है, पिंक कलर का। ठीक, उस जो कलर होता है उसको मूंगा बताया गया है ना, तो उसके कलर के जैसा बताया गया, मतलब वो जो होते हैं उनकी जो रंग है उस तरह का गुलाबी है। ठीक है, तो उससे इसके मतलब बताया गया बिल्कुल वैसे। ठीक, एडमायर्स का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी की प्रेस करना। फिर कह रहा है फॉर्म लिखा स्टार लाइक आइसेस डोथ सीक, तो डोथ मतलब यहाँ पर डज हो जाएगा, आर करके बता रहा फॉर्म स्टार लाइक आइसेस। स्टार लाइक आइसेस का मतलब हो जाएगा तारों की जैसी आँखें, मतलब बहुत ही खूबसूरत वो इंसान जो किसी अपनी जो उसके विलब्ड है, जो प्रेमिका है, प्रेमी है, जिससे प्यार करता है, उसके चेहरे मतलब, अब इसका मतलब देखिए डैट लव्स रोजी चीक का मतलब होता है गुलाबी गाल। गुलाबी गाल से मतलब ये है कि उसके चेहरे की सुंदरता को, खूबसूरती को देख कर अगर उससे प्यार करता है, या कोरल लिप्स या उसके खूबसूरत गुलाबी होठों की हम तारीफ़ें करता है, या उसकी बहुत खूबसूरत आँखों को देखकर हमेशा उसकी आँखों की मतलब तारीफ़ें किया करता है, उसी में मतलब क्या कहते हैं मगन रहता है। फुल टू मेंटेन दिस फायर्स, और फ्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान होता है दिस टाइप्स पर्सन नीड्स चार्मिंग, यूँ कह सकते हो चार्म्स होता है, टू अलाइव हिज ब्यूटी फॉर एवर। तो इस तरह के जो इंसान जो फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए शारीरिक सौंदर्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर शारीरिक सौंदर्य से अगर आप प्रेम करेंगे तो क्या होगा कि जो आपके शारीरिक सौंदर्य फिजिकल जो ब्यूटी वक्त के साथ साथ क्या होगी, वो उसमें क्या हो गिरावट आती जाएगी, आपका जो चाहने वाला उसकी सुंदरता में कमी आती चली जाएगी, और एट लास्ट आपका प्यार भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, यही चीज़ इसमें बताना चाहता है। सो लिखा हिज फ्लेम वेल, यहाँ पर जैसे इस लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, ये एक एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके। तो अगर वो इंसान जो अब चेहरे के रौनक से प्यार करता है, या उसके ओठों पर फिदा होता है, या यूँ कह सकते हो आँखों, मतलब अब दूसरे लोग कहते क्या खूबसूरत आँखें, कैसे गाल हैं, क्या चेहरा, इन चीज़ों से अगर वो प्रेम करता है, यूँ समझ लीजिए उसको क्या होना, तब क्या होगा, तो ऐसे प्रेमी को उसके शारीरिक सौंदर्य को बरकरार रखना पड़ेगा, वरना अगर टाइम के साथ साथ उसका जो शरीर है वो साथ नहीं देगा, उसमें कमियां आएंगी, तो उसका प्यार क्या वहीं पर ख़त्म होता चला जाएगा। क्योंकि लास्ट में लाइन में पोइट क्लियर भी कहता है एज ओल्ड टाइम मेक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा, वैसे वैसे सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, मतलब प्यार की जो आपकी जो लव है, जो जुनून है, वो धीरे धीरे क्या है वेस्ट, मतलब वो ख़त्म होता चला जाएगा। दैट इनडायरेक्टली वी कैन से द पोइट वांट टू टेल अस दैट वी शुड लव spiritual beauty, not physical beauty, because physical beauty less with the passage of time. Okay, and second जो स्टेंजा है कंक्लूडिंग स्टेंजा भी कह सकते हैं, because this poem is divided into 2 stanzas of 6 lines. That's it. सेकेंड स्टेंजा में पोइट क्या कह रहा है, बर्ड लिखा स्मूथ, मतलब यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर स्मूथ का मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर निष्पक्ष कह सकते हैं, इम्पार्शियल होता है, इसमें कोई लालच ना हो। एंड स्टेडफास्ट माइंड, दृढ़ जो मन होता है, अभी मैंने बताया था कि ना फर्मनेस ऑफ माइंड इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ ट्रू ब्यूटी, तो ये वो भी होना चाहिए। फिर कह रहा है जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर। देखिए आप 3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी इसने पॉइंट आउट की हैं, कि अगर ये कह सकते हैं कि इन द स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ ट्रू ब्यूटी। फर्स्ट वी कैन से स्टेडफास्ट माइंड, सेकेंड जेंटल थाट्स एंड थर्ड काम डिज़ायर। ठीक है, तो स्टेडफास्ट माइंड
gentle thoughts and calm desire are essential part for true beauty. ओके, तो ये क्या कहता है कि मतलब कि वो इंसान जिसका क्या है, जिसका जो मस्तिष्क क्या हो, स्टेबल हो, अनस्टेबल ना हो, दृढ़ हो, एक ही मतलब ये ना हो कि एक अभी आपने इसको देखा, दूसरे को देखा तो उससे अब उसके बारे में ये ख्याल आने लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इससे स्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल अगर हैं तो आपकी भी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, मतलब वो जो ट्रू ब्यूटी है, वो ट्रू ब्यूटी कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कंडेम करता है, ठीक है। अब बताता है अगर इस तरह का है तो उसमें नुकसान होगा डेफिनेटली। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर। देखिए इस 2 लाइन में क्या कहता है, अगर जो बोथ लवर हैं दोनों, उनके जो दिलो दिमाग भी कह सकते हैं एक ही जैसे मैच करते हैं, दोनों में काम डिज़ायर या काफ़ी अच्छे विचार हैं और फर्मनेस ऑफ माइंड है उनके अंदर, ठीक है। हार्ट विद इक्वल का मतलब हो जाए एक जैसा है, लव कंबाइंड मतलब ऐसा कि ऐसे जो है एक खूबसूरत विचार हो, एक अच्छा दिमाग हो, ठीक है, पेशेंस रखने वाले हार्ट हों। अगर इन चीज़ों से मिलकर जो प्यार पैदा होता है, ऐसे चीज़ों से मिलकर जो सब मिक्स हो जाता है, इक्वल समान जो प्यार पैदा होता है, उसी को कहा गया किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो ये फायर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैसन ऑफ लव हो जाएगा, जुनून भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसे तो फ्यूल लिखा था, फ्यूल का मतलब भी दरअसल भी ऊपर आपने देखा था ये यहाँ पर, तो फ्यूल का मतलब एक्चुअल तो ईंधन होता है, तो फ्यूल का मतलब ईंधन यहाँ पर नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये क्या हो जाएगा, जिससे जोश होता है, पैसन ऑफ लव, ठीक है। तो यहीं पर वही कह रहा है किंडल नेवर डाइंग फायर। तो जब इस तरह का जो प्यार होता है, एक जैसा जो विचार हो, काफ़ी खूबसूरत विचार हैं, अच्छा दिलो दिमाग है, मतलब क्या कहते हैं इनर ब्यूटी वाला जो प्यार है, तो उसमें क्या है, कभी इन तरह चीज़ों की मतलब क्या नहीं आती, नफरत भी नहीं होती, वो हमेशा बरकरार रहता है। बिकॉज भी आपने बताया था कि सोल एंड गुड थॉट्स नेवर डाइज, जो आत्मा से प्रेम करते हैं, जो इंटरनल सोल से जो प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो द पोएट वांट्स टू एडवाइज, हम लोगों को यही एडवाइस भी करना यही चाहता है कि वी शुड लव स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट फिजिकल ब्यूटी। इफ़ यू लव फिजिकल ब्यूटी देन आवर लव बिकम्स लेस व्हेन आवर बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, ठीक है। तो जैसे वो बूढ़ा होता चला जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, तो वो वैसा नहीं दिखेगा जैसा अपनी यंग एज में दिखा करता था, तो जाहिर सी बात है उसमें भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। क्या अब लास्ट में अपने जो है ख़यालात वो शेयर कर रहा है। पोएट कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर मतलब जहाँ पर फर्मनेस ऑफ माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिज़ायर नहीं है, समान प्यार करने वाले दिल नहीं है, तब अगर उसके चेहरे की जो सुंदरता है या जो आँखें खूबसूरत आँखें हैं या ओठ काफ़ी खूबसूरत हैं, तब क्या कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं हैं। आई डिस्पाइज का मतलब नफ़रत करना, ईर्ष्या करना कहते हैं। तो पोएट कहता है कि उस तब ऐसी औरत से हमें क्या, ऐसे गुलाबी गालों से, ऐसे ओठों से, ऐसे आँखों से हमें बिल्कुल क्या है, लगाव नहीं है, मतलब वो नफ़रत करता है। लवली चीक्स आर लिप्स आर आइसेस, ठीक है, ये राइटर इसमें कह रहा है। तो एक बार वंस अगेन अगर हम थोड़ा फास्ट देख सकते हैं तो वो उसमें यही कह रहा है कि ही डैड लव्स अ रोजी चीक्स अ कोरल लिप्स आर एडमायर्स। वो इंसान जो अपने प्रेमिका के खूबसूरत क्या कह सकते हो गुलाब के जैसे गालों से की वजह से प्यार करता है, या उसके खूबसूरत जो ओंठ हैं उसको देखकर प्यार करता है, या फिर कह सकते हो उसकी खूबसूरत आँखों पर मर मिटता है, फिदा हो जाता है। अगर ऐसा इंसान वो करता है तो यूँ समझ लीजिए उसको अपने फ्यूल टू मेंटेन दिस फायर मतलब प्यार हो जाएगा, फ्यूल यही पैशन। तो अपने प्यार को उसी तरह से जुनून जो है पहले वैसे बरकरार रखने के लिए शारीरिक सौंदर्य की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि राइटर कहता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो चाहत है उसकी क्या है, ख़त्म होती चली जाएगी। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, क्योंकि उसके चेहरे की जो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है, चेहरे की रौनक वैसी रहेगी नहीं, और एट लास्ट क्या होगा, उसके प्यार में क्या है, गिरावट आ जाएगी। एंड लास्ट स्टेंज में क्या कहता है, बड़ा स्मूथ, लेकिन फिर कहता है अगर इस तरह का प्यार है, बहुत ही खूबसूरत दिमाग है, इंटरनल सोल के बारे में बता रहा है, और फर्मनेस ऑफ माइंड, दृढ़ मस्तिष्क स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं है, इनको देखा तो इनकी तरफ, उनको देखा तो उनकी तरफ ना, इस तरह का अगर नहीं है तो तभी कहता है इस तरह के इंसानों के अंदर जो काफ़ी खूबसूरत विचार हैं, शांत इच्छाएँ हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है,
इस तरह का जो हर्ट होता है तब जो दो लवर होते हैं उनका जो प्यार होता है, जो प्यार जन्म लेता है इन दोनों के दरमियान, ऐसे लोगों के जिनके इस तरह के विचार हों, तब जो प्यार जन्म पनपता है, जन्म लेता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इस टाइप का यहाँ पर लिखा किंडल नेवर डाइंग फॉर, इस तरह का प्यार जो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि राइटर लास्ट में अपनी जो है अपने ओपिनियन रखता है हम लोगों के बिफोर, वो यही कहता है ना कि तब बिफोर ये वेयर दीज आर नॉट, अगर जिस तरह से मैंने बताया था, इफ़ अ वुमन हैज़ द क्वालिटी काम डिज़ायर सच एज काम डिज़ायर, जेंटल थाट्स एंड स्टेडफास्ट माइंड, देन वी कैन से द लेडी इज़ कॉल्ड बी ब्यूटीफुल। ठीक है, इफ़ अगर क्या कह सकते हैं, अगर उस तरह की चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं, शी हैज़ लैक ऑफ स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर, देन पोएट डिस्पाइज। अगर उस औरत के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो पोएट क्या उससे नफ़रत करता, कहता वैसी आँखों से, वैसे गालों से या वैसे चेहरे से एकदम सख्त उससे नफ़रत है। ठीक है, तो वो इसलिए कह रहा है कि मतलब यूँ कह सकते हैं वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर अ वुमन, है ना। विदाउट वर्च्यू अ वुमन कांट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, बिकॉज विदाउट वर्च्यू अ वुमन नथिंग बट शो। सिर्फ एक दिखावे की चीज़ होगी औरत, अगर जिसमें खूबसूरत मतलब सिर्फ क्या, जिसके अंदर रहम नहीं है, अच्छे से सोच नहीं, बेहतर दिमाग नहीं है। ठीक है, तो आई होप कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके यहाँ पर एक्सप्लेन भी आपके सामने दिख रही होगी। तो पहली जो स्टैंजा है थॉमस कैरी की, एक्चुअली ये कैरी पढ़ा जाता है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर कैरी नहीं है, कैरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा है तो ये लिखा है ही दैट्स लिखा है वेस्ट वे, तो इसका जो है क्या है यहाँ पे रेफरेंस आई होप आप लोग लिख ही लेंगे। तो रेफरेंस आप लिख ही लेते हैं कि मतलब दिस स्टैंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्री ब्यूटी। ठीक है, विच इज़ कंपोज बाय थॉमस कैरी। कॉन्टेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है 4 लाइन को पढ़ते पढ़ते, तो कॉन्टेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पहले आप जब लाइन पढ़ेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। द पोएट हिंट कर रहा है, आपको दे रहा है एट द फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ द बिलव्ड दैट लिखा, एंड फिर क्या कहते हैं, अब फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बता रहे, जो शारीरिक है किस तरह से लोग मतलब जो उनकी जो शो पीस होती है दिखने से बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बात की है। द पोएट पुट्स द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ब्यूटी बिफोर अस। द पोएट क्या है, पोएट बहुत ही खूब जो बहुत ही ज़रूरी जो गुण होता है उनको हम लोगों के सामने उसने क्या शेयर किया है, रखा है। ही सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद द प्रोसेस ऑफ टाइम। वो भी यही चीज़ बता रहा है, राइटर कह रहा है पोएट कि वो ये बताता है कि द लव बेस्ड ऑन फिजिकल, जो ऐसा प्यार जो शारीरिक खूबसूरती जो जिस्मानी खूबसूरती पर आधारित है, उस तरह का जो प्यार है फेड्स अवे, वो ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा कह सकते हैं विद वक्त के गुजरने के साथ साथ। जैसे ही मान लीजिए ज़रूरी तो है नहीं जो इंसान आज जवान दिख रहा है, यंग दिख रहा है, ज़रूरी नहीं 8-10-60 साल बाद वैसा दिखे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर उन लोग जो फिजिकली ब्यूटी पर हैं तो उनके लिए फिर क्या होगा, 60 साल में भी उनको वैसे बरकरार रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अब इसकी जो हम तशरीह करेंगे, व्याख्या जिसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो इन 4 लाइन में वही बता रहा है पोएट, कहता है द पोएट सेज दैट फॉर मोस्ट पीपल, ये भी वही चीज़ बता रहा है कि ही दैट लव्स रोजी चीक्स। एक्चुअली क्या होता है, बोला था ना इस स्टार्टिंग में कि मोस्टली अ मैन लव्स अ वुमन फॉर हर रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, है ना, इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादातर करता है। तो ये मॉडर्न एज में अगर देखेंगे तो मोस्टली लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि द पोएट सेज दैट फॉर मोस्ट पीपल फिजिकल चार्म्स, अक्सर जो लोग होते हैं क्या होता है, फिजिकल चार्म जो शारीरिक जो खूबसूरती है, जैसे कि कोई रोजी चीक्स है ना, कोरल लिप्स है एंड स्टार लाइक आइज, इन्हीं चीज़ों पर वो फिदा हो जाता है। आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेंस ऑफ देयर लव, उनके प्यार को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें। ठीक है, ये कह रहा है उसकी क्या है रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरी है अगर उसका प्यार बरकरार रखना है। ओके, ही सेज दैट, अब यहाँ देखिए वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर ट्रू ब्यूटी। वर्च्यू बहुत ज़रूरी है, जो हकीकत में जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखना है तो आपके अंदर वर्च्यू होना चाहिए। बिकॉज देखिए लिखा है विदाउट वर्च्यू अ वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, बिना वर्च्यू के वो औरत खूबसूरत नहीं कहलाएगी। ट्रू ब्यूटी इज एसेंशियल फॉर परमानेंट। ठीक है, तो ट्रू ब्यूटी क्या है, परमानेंट। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार हमेशा सलामत रहे तो तब क्या ट्रू ब्यूटी होनी चाहिए, वास्तविक सुंदरता हो। इफ़ अ मैन केयर्स ओनली फॉर फिजिकल चार्म, अगर कोई इंसान ऐसा आदमी है जो किसी औरत से सिर्फ उसके फिजिकल चार्म्स की तारीफ़ करता है, उसी पर फिदा होता है,
तो यहाँ पर कंडीशन राइटर ने बता दी है। देखिए तब यहाँ क्या कहता है, राइटर कहता है, चार्म्स लिखा है हिज लव्स बिकम्स लेस, तो उसका जो प्यार है वो कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा? व्हेन लिखा हिज विलव, जब उसका जो चाहने वाला होगा बिकम्स ओल्ड, अगर वो शारीरिक सौंदर्यता से प्यार करता है तो जैसे जैसे उसका प्रेमी बूढ़ा होता जाएगा वैसे उसका प्यार क्या है? कम होता चला जाएगा। ओके, इन दैट स्टेट द, अब यहाँ इन दैट स्टेट क्या कहते हैं? उस अवस्था में जैसे था ही विल नॉट बी अट्रैक्शन, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उस अवस्था में, उस स्टेट में वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। इन द सेम मैनर व्हेन हिज विलव्ड वाज यंग, जब वो जवान हुआ करता है, जो उसके प्रेमिका जवान थी तब वो कैसा दिखती थी, ठीक है। तो वो चीज़ें जब बूढ़ा, उसकी जो प्रेमिका बूढ़ी हो जाएगी तब वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी और उस पर तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा उसका प्यार। यहाँ पे लिखा है व्हेन हिज विलव्ड वाज यंग एंड फुल ऑफ ब्यूटी एज अपीयरेंस चेंज विद द टाइम। देखिए आप ये चेहरे की रौनक, वही चीज़ें हैं ना कि एक्चुअली अब ये भी चेंज द लॉ ऑफ नेचर, वो भी होता है डेफिनेटली। और दिस प्रोसेस कांट बी चेक्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा इसे रोका भी नहीं जा सकता है। वही लाइन इसमें भी राइटर कह रहा है कि अपीयरेंस क्या है, देखिए अपीयरेंस चेंज विद द टाइम, जो आपके चेहरे की जो रौनक है, जो लुक है, आप नर्सरी में कुछ दूसरे तरह से दिखते थे, 8th में कैसे दिखे, फिर 10th में कैसे, 12th में आफ्टर, ये सब ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपकी पहली पोएम, मतलब सेकंड पोएम थी। और मिलते हैं अनदर टॉपिक्स में। ओके, दैट्स ऑल।